پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کا عزم، دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی سی پیک کی ترقی میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور، سی پیک کو اپ گریڈ کر کے جدید ترقیاتی راہداری بنایا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان اور چین کا تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز میں چینی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ صدر زرداری اور چینی صدر کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شراکت داری کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے مواقع پر غور۔ صدر مملکت کا عالمی ترقی میں چین کے تعاون پر صدر شی جن پنگ کو خراج تحسین۔ صدر زرداری کی چینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ صدر مملکت نے پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ قابل تجدید توانائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور زراعت کے شعبوں میں تعاون گہرا کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات میں اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے لیے سی پیک منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان کی ٹھٹھہ سیمنٹ کمپنی اور چین کے چینگ گانگ کنسٹرکشن گروپ کے مابین ایم او یو پر دستخط۔ پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی۔ سندھ کے محکمہ توانائی اور چین کی منگ یونگ قابل تجدید توانائی کمپنی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ صدر مملکت بیجنگ سے ہاربن روانہ 9ویں ونٹر ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے سربراہان کے اعزاز میں دیے جانے والے ظہرانے میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی ان کی سرزمین سے منتقلی مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، فلسطینیوں کو کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ پاکستان ایسی آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ پاکستان غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ شفقت علی خان نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے دورہ چین میں پاکستان کی ون چائنا پالیسی کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین نے دفاعی تعاون کا جائزہ لیا اور علاقائی توازن پر زور دیا۔ چین نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی مخالفت کر دی۔ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی بنیادی اصول ہے۔ غزہ کے باشندوں کی جبری منتقلی کے مخالف ہیں۔ غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی مخالفت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر غزہ پر قبضے کا بیان دہرا دیا۔ عالمی رد عمل دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کی وضاحتیں بھی کسی کام نہ آئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی پٹی اسرائیل کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دی جائے گی۔ تب تک فلسطینی شہری کہیں زیادہ محفوظ اور خوبصورت علاقوں میں دوبارہ آباد ہو چکے ہوں گے۔ انہیں درحقیقت خوش، محفوظ اور آزاد رہنے کا موقع ملے گا۔ امریکہ پوری دنیا کی عظیم ترقیاتی ٹیموں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ امریکہ کو کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خطے میں استحکام آئے گا۔ آہستہ آہستہ اور احتیاط سے غزہ کی تعمیر شروع کی جائے گی۔ اسرائیل کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حیرانی کا اظہار۔ اسرائیلی حکومت غزہ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تفصیلات سے واقف نہیں۔ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں غیر متوقع بیان دیا ہے۔ امریکی صدر کا بیان مشرق وسطیٰ میں غصے کا باعث بنا۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر ٹرمپ نے بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ امریکی صدر کو درست سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لگتا ہے کہ ٹرمپ غزہ کی پٹی کو صرف ریئل اسٹیٹ کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ فلسطینیوں کو بدلے میں جو بھی پیشکش ہو، یہ زمین نہیں بیچی جائے گی۔ حماس ترجمان کی جانب سے اسرائیلی قبضے کی حمایت کرنے پر امریکی صدر پر شدید تنقید۔ ایک اور جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن۔
12 खबारी जहन बासिल फायरिंग के शदीद तबादले में लांच नायक मोहम्मद इब्राहिम बादरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए खबारी से असला गोला बारूद भी बरामद। हलाक होने वाले खबारी सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। इलाके में दीगर मुमकिन खबारिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। हैदराबाद में वकला का कौमी शाहराह पर धरना जारी। वकला एहतजाज के साथ साथ इंजॉय भी करने लगे। धरने में शरीक वकला ने कौमी शाहराह पर चाय भी बनाई, गाने भी गाए। धरने के बाईस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वकला का SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाईस मोटरवे M9 बंद। हैदराबाद से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके 3 तलवार में भी वकला का एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जब तक SSP का ट्रांसफर नहीं होगा धरना जारी रहेगा। सदर कराची बार। लाहौर हाई कोर्ट में 9 वकला को एडिशनल जज बनाने की हतमी मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। अलामिया जारी। हसन नवाज, मखदूम, मलिक वक़ार हैदर, सरदार अकबर अली और दीगर के नाम की मंजूरी दी गई। मलिक जावेद इकबाल, सईद हसन रज़ा काज़मी, जवाद जफ़र, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, चौधरी सुल्तान महमूद के नाम भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी हो गए। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। मुद्ई मुकदमा इस केस से पीछे हट चुका है। शहादतों का जायजा ले तो भी सजा का इम्कान नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को केस से बरी करती है। जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 9 अप्रैल 2019 को फर्द जुर्म आयद की। 14 फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने 11 सितंबर 2022 को रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब का इल्जाम था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 2015 में रमज़ान शुगर मिल्स के लिए नाला तमीर करवाया। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज की केस में बरीयत के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुबारकबाद। बरवक्त इस्लाहात से मुईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। इदारों की निजकारी का अमल शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किसी किस्म का तातल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी के अमल और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दाम और सहूलत फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर अताउर रहमान, असद महमूद और मोहम्मद असलम बुखारी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 65% नंबर लेने वालों को लैपटॉप मिलेगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा है कि होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप पर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। तालीम और यूथ कौम की हकीकी इन्वेस्टमेंट है। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। तलबा के लिए किसी भी स्कीम में फंड्स की फराहमी रुकावट बनने नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद। फैसला ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। लाहौर में होने वाले अहम इवेंट्स के बाईस दरख्वास्त मुस्तरद की गई। PTI की माजी के जलसों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जियाँ भी इजाज़त न देने की वजह करार। DC लाहौर के कहने कि फैसला अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। लाहौर में सैफरी की वनडे सीरीज हो रही है।
पहले CPA एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। PTI का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि 8 फरवरी को PTI का मैंडेट चोरी किया गया। पूरे मुल्क में PTI के कारकुनान यौम सियाह मनाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सवाबी के जलसे में भरपूर शिरकत करें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। ऐवानों में अवाम के मुसरद किए गए लोग बैठे हुए हैं। ऐसे लोग अवाम के लिए क्या कानून साजी करेंगे? हम सियासी जमात हैं और सियासी जमात का काम सियासी हलीफों को इकट्ठा करना है। बानी PTI बदतरीन हुक्मरानी के बाद अदम इत्तेमाद की तहरीक से फारिग किए गए। PTI ने बगावत कर दी। 9 मई बर्पा किया गया। KP से इस्लामाबाद में मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। मुल्क को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। 77 साल तारीख में किसी लीडर या जमात ने शुहदा की तौहीन नहीं की। मुल्क की असास या दिफा के निशान या तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करेगी। आज़मीन के लिए खिदमत का आला मेयार यकीनी बनाएंगे। टूर ऑपरेटर्स अपनी नीयतें ठीक करें। जज टूर ऑपरेटर्स अल्लाह के मेहमानों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत यकीनी बनाएं। सऊदी कवानीन और निज़ाम के तहत इक़दाम यकीनी बनाना होंगे। सऊदी हुकूमत आज़मीन के लिए बेहतरीन इक़दाम यकीनी बना रही है। इस साल 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने उम्रा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समात अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन के नोटिस जारी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समात की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला और गैर आइनी है। अदालती जायजा लिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अदालत से पीका एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कामे कमेटी का पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कामे कमेटी ने कहा है कि पीका एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वज़ीरात इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से डिजिटल मीडिया भी रेगुलेट होगा। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है।